السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ آج یوم ولادت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے موقع پر سچ ٹی وی کی جانب سے اہل اسلام کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ چند گز زمین کا ٹکڑا قیمتی جانیں لے گیا۔ پشاور میں بچوں اور خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو گھر میں گھس کر ابدی نیند سلا دیا گیا۔ 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پشاور کے علاقے چمکنی میں 7 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے گئے۔ وجہ تنازع بنا زمین کا ٹکڑا۔ مسلح افراد گھر میں گھسے اور اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ خواتین کو دیکھا نہ ہی معصوم بچوں کا پاس لحاظ رکھا جو آیائی سے بھون ڈالا۔ اندوناک واقعہ نوائی علاقے چوہا گجر میں ابراہیمی نامی شخص کے گھر میں پیش آیا۔ مقتولین میں ابراہیم خان کے 3 بیٹے، اہلیہ، بھائی اور بھابھی شامل ہیں۔ وقوع کے وقت ابراہیم گھر پر موجود نہ تھا۔ واقعے کی اطلاع ملی تو پولیس حرکت میں آئی اور قاتلوں کی تلاش شروع کر دی۔ 4 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ ادھر وارسک روڈ پر سکول کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں گولیاں لگنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ لیا میں واقع MM روڈ پر تیز رفتار ٹرالر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار 3 طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ سکول جاتے ہوئے پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوانوں میں 2 بھائی اور ایک ان کا کزن شامل ہے۔ حادثہ تیز رفتاری اور اوورٹیکنگ کے باعث پیش آیا۔ واقعے کے بعد ڈرائیور جائے حادثے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیا پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے ذمہ دار مفرور ٹریلر ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ خانپور کے نواحی علاقے سورج گلی میں کریش پلانٹ پر کام کے دوران پہاڑی تودا گر گیا۔ ملبے تلے دب کر ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق کرشن پلانٹ کے لیے بلاسٹنگ کر کے پہاڑ سے پتھر نکالے جا رہے تھے اور بلاسٹنگ کے باعث پہاڑ کھوکھلا ہو چکا تھا جو اچانک سرک گیا۔ کرشن پلانٹ کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پنجاب کے شہر جنابالہ میں شوہر نے خلا مانگنے پر کانسٹیبل بیوی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ نے شوہر سے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ مقدمے کی رنجش پر ملزم نے بیوی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ خطیر رقم خرچ ہونے کے باوجود تاحال کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں نصب سرکاری واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مرمت ممکن نہ ہو سکے۔ پلانٹس کی طویل بندش سے شہر میں صاف پانی نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔ وادی کوئٹہ میں یوں تو عوام گزشتہ کئی سالوں سے پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں، لیکن سابقہ دور حکومت میں عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں خطیر رقم کی لاگت سے جو واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے گئے تھے ان میں اکثر پلانٹس متعلقہ حکام کی عدم توجہی اور بے حسی کی وجہ سے خراب یا بند پڑے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹس کی بندش سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے اور شہر میں صاف پانی دن بدن ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے پلانٹ، پانی نہیں ہے، پانی برما بھی صحیح ہے، واٹر پلانٹ بند پڑا ہوا ہے، 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے، نہ ملازم آ رہا ہے نہ کوئی افسر آ رہا ہے۔ 10 دن بھی نہیں چلا، بس ختم ہو گیا۔ ابھی نہ پانی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی کام والا ہے۔ کیا آتا ہے برما بھی بند ہوتے ہیں، برمے کا بھی کوئی ایسا حال ہے۔ پیچھے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تالاب بنا ہوا ہے۔ واٹر پلانٹس کی بندش کے خلاف کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں شہری سراپا احتجاج بھی ہیں اور اس اہم مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو کئی بار تحریری طور پر بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ سندھ کے شہر ویگن میں صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ نادر علی کی رپورٹ۔ 60 سے 70 ہزار نفوس پر مشتمل سندھ کے شہر ویگن میں صاف پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ سالوں قبل لاکھوں روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی واٹر سپلائی اسکیم ناکارہ ہو کر تباہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید گرمی میں صاف پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے ہیں۔ اس دور میں نہ وہ واٹر سپلا رہے ہیں، نہ وگن کے شہریوں کو وہ پانی مل رہا ہے پینے کے لیے۔ ٹاؤن وگن میں اتنا فقدان ہو گیا ہے میٹھے پانی پینے کے لیے کہ عوام بہت پریشان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پیچھے یہ روز مرہ لا کے گدے گاڑیوں پہ
ایسے ہی یہ لوگ گیلنے لے کے آتے ہیں. جو کام والے بندے ہیں وہ صبح کام پہ جائیں یا پانی بھرنے کے لیے آئیں. شہری کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں پانی بھی پیسوں کے عوض خریدنے پر مجبور ہے. جو ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے اس سارے انسان ذات سے پانی چھین رہے ہیں. پانی کی بہت بڑی تکلیف ہے. پانی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. میٹھا پانی ہمارے علاقے میں نہیں ہے. جو کینالوں کے اوپر جو ہینڈ پائپ لگے ہوتے ہیں اس سے یہ پانی بھر کے ہم گھر جاتے ہیں. تب تک پریشانی ہوتی ہے جب تک پانی ہم گھر میں نہیں. اپنے روزگار پہ جاتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے، پانی بھرنا ہے. ویگن کے شہریوں نے سندھ حکومت سے فوری طور پر صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. جوہی کے نواحی علاقے میں صاف پانی نایاب ہو گیا. شہری آلودہ پانی پینے کے باعث مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں. آچر مستوئی کی رپورٹ. کانچوں کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. دور جدید میں بھی کانچوں کے مکین 100 سال پرانے دور جیسی زندگی گزارنے لگے ہیں. جوہی کے علاقے چینی میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا، جس کی وجہ سے شہری گائیں بھینسوں نہانے والے تالابوں کا گندا پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں. گندا پانی پینے کی وجہ سے شہری گیسٹرو، ڈائریا، ملیریا اور پیٹ کے خطرناک امراض کا شکار ہونے لگے ہیں. ہم یہاں پہ تالابوں کا جو گندا پانی ہے وہ پی رہے ہیں، اس لیے بیماروں میں مبتلا ہو گئے ہیں. شہری کہتے ہیں منتخب نمائندوں کی طرف سے پینے کے صاف پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ کی سہولیات مہیا نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً تالابوں کا گندا پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سندھ والے جو ہے ناجائزی کر رہے ہیں سندھوں کے، تو ابھی آپ نوٹس لیں پلیز. ابھی پانی کا ایشو ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ پبلک ہیلتھ کی بالا آفیسروں سے پینے کے صاف پانی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے. محمد آچر مستوئی، سچ ٹی وی، جوہی. بورے والا میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ زمینداروں نے ٹیوب ویل سولر سسٹم پر منتقل کر دیے. رپورٹ کریں گے کریم سیفی. آئے روز بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر اور لوڈ شیڈنگ کے ستائش ذمہ داروں نے بھورے والا اور گرد و نواح میں اپنے ٹیوب ویل سولر سسٹم پر منتقل کر دیے. ان ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں نہری پانی نہ ہونے کے برابر ہے. سولر لگانے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ جو تقریباً 1 مربع ہماری زمین ہے، جو نہری پانی ہے اس کی کھپت سے وہ سیراب نہیں ہوتا تھا 1 مربع. تو پہلا فائدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سولر سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ 1 مربع جو ہم کاشت کر رہے ہیں مکمل کا مکمل. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. دوسری جانب مہنگائی نے تو ذمہ دار سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے. بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں برداشت سے باہر ہیں، اس لیے ان ٹیوب ویل کو سولر سسٹم پر منتقل کیا ہے. اب ہم اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بیچ کر اچھی آمدن بھی کما رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا. دادو کے سب سے بڑے سرکاری اسکول کی بجلی 3 دن سے معطل ہونے کی وجہ سے طلباء کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. شدید گرمی میں بجلی بندش کے باعث 1000 سے زائد طلباء کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. اسکول کے طلباء اور اساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے بجلی کی بحالی کا مطالبہ کیا. شعیب تہیم کی رپورٹ. دادو شہر کے سب سے بڑے سرکاری پائلٹ ہائی اسکول کا ٹرانسفارم خراب ہونے کے باعث 3 دن سے اسکول میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. شدید گرمی میں بجلی کی بندش کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے لگی ہیں. بجلی کی فراہمی معطل ہونے کی وجہ سے طلباء اور اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. 3 دن ہو گئے، 3 دنوں سے لائٹ نہیں آ رہی ہے. ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. ہماری اسٹڈی میں بھی کافی پیچھے ہو گئے. گرمی کی وجہ سے ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں 3 دنوں سے لائٹ نہیں ہے. یہاں پہ بہت پریشانی ہے. ہمیں اسٹڈی کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. یہاں پہ گرمی بہت ہے، پانی بھی نہیں ہے. اور یہاں جیسے ہی ہم یہاں آ رہے ہیں اسکول میں تو بہت گرمی ہے، زیادہ گرمی ہے، پانی بھی نہیں ہے. اس موقع پر اسکول کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ پہلے سے ہی کورونا کے باعث تعلیم کا بہت حرج ہو چکا. اب بجلی بندش کی وجہ سے 1000 سے زائد طلباء کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. 3 دن ہوئے لائٹ نہیں آ رہی، ٹرانسفارمر خراب ہے. یہاں بچے پہلے ہی کورونا سے اسکول بند تھے. بہت گرمی ہے. یہ پانی کے جو ٹانکیز ہیں وہ بھی نہیں بھر رہی، یہ موٹر نہیں چل رہے، یہ بچے گرمی میں تڑپ رہے ہیں. یہاں ہمارے پاس اٹینڈنس جو ہے وہ تقریباً 1000 تک ہے. یہ بچے اتنی گرمی میں، شدید گرمی میں، کووڈ کا زمانہ، دوسرا اتنا ہمارا لاس ہو چکا ہے ایجوکیشن کا. پھر یہ لوڈ شیڈنگ ہو تب بھی صحیح ہے. یہ تو ٹرانسفارمر جلا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹرانسفارمر کی مرمت نہ کرنے کے خلاف اسکول کے طلباء اور اساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے معاملے کا سختی سے نوٹس لے کر فوری ٹرانسفارمر کی مرمت کرا کے بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو. عارف والا اور اس کے گردنواں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. شہر میں 6 سے 7 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن چکا، جس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں. نذیر احمد کھرل کی رپورٹ.
पंजाब के पसमानदा इलाके तहसील आरिफ वाला और आस पास के कई देहातों में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कई इलाकों में बिजली की ट्रिपिंग ने लोगों के घर का सामान भी जला के रख दिया। लोड शेडिंग और बिलों में पिसी हुई आवाम का कहना है बिजली नहीं आ रही, आवाम इतनी परेशान है कि जब बिजली आती है तो टीवी सड़ जाते हैं, फ्रिजा सड़ जाती हैं, आवाम बहुत परेशान है। तब्दीली सरकार ने आवाम के सामने 22 साल जिस बात का रोना रोया, आज वही कुछ खुद कर रही है। हुकूमत वक्त से आवाम ने मुतालबा किया है कि गैर इलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर कंट्रोल न किया गया तो लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले तब्दीली सरकार ने जो आवाम को सबज बाग दिखाए वो अब पूरे करे। मजीद आवाम का कहना है कि अगर लोड शेडिंग को कंट्रोल ना किया गया तो अवाम सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। फैजाबाद में बिजली चोरों की शामत आ गई। जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कराए गए और भारी जुर्माने भी आयद किए गए। जफर इकबाल की रिपोर्ट। फैजाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की रोशनी में गैपको इंतजामिया की जानब से जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 3 दर्जन के करीब बिजली चोरों को भारी जुर्माने और मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। इसी हवाले से SDO सब डिवीजन नंबर 3 हामिद जमान तारड़ और SDO सब डिवीजन नंबर 4 और नूर लैनमैन ने बताया कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक गैपको चीफ एग्जीक्यूटिव और एक्शन हाफिजाबाद की हदायत के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ बला खौफ खतर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान सब डिवीजन नंबर 3 हाफिजाबाद के इलाका घड़ीवान खानपुरा से 5 मीटर बिजली चोर पकड़े। सब डिवीजन नंबर 4 गैपको हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दौरान चेकिंग 15 अदद बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जो कि डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे, जिनके खिलाफ एक्शन लेकर उनके खिलाफ FIR मुख्तलिफ थानों में भिजवा दी गई है और हजारों यूनिट के डिटेक्शन बिल उनको चार्ज किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ जिन इलाकों में कार्रवाई की गई उनमें सब डिवीजन नंबर 2, सब डिवीजन नंबर 3 और सब डिवीजन नंबर 4 में कार्रवाई की गई। लैंड सुपरिटेंडेंट अब्दुल रज़ाक मुगल ने गुफिया इतला पर अपनी टीम के हमरा जिन इलाकों में कार्रवाई की उनमें महल्ला खानपुरा, घड़ीवान, छन्नी करीमदाद और वली टाउन समेत जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। महल्ला खानपुर में जदीद तरीके से बिजली चोरी करते थे, जिनके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई। वापडा इंतजामिया का कहना है कि कौम की बिजली चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। रेंडियर खान के इलाका इकबाल टाउन में 7 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हसन रहमानी की रिपोर्ट। रहीम यार खान के इलाके इकबाल टाउन में गुज़िश्ता 7 रोज से बिजली बंद होने पर इलाका मकीनों ने वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और वापडा काम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बताया कि 7 रोज से इकबाल टाउन में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। घरों में पानी तक नहीं, गर्मी से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। वापडा को शिकायत करने के बावजूद बिजली को बहाल नहीं किया जा रहा। 7 दिन से बिजली नहीं है। वापडा से हमारी अपील है कि मेहरबानी करें और हमारा ट्रांसफार्मर ले आएं और बिजली हमारी तरफ आ जाए, मेहरबानी होगी आपकी। रहीम यार खान इकबाल टाउन में हम 105 में रह रहे हैं। हमारी 7 दिन से बिजली नहीं है। हमारी मस्जिदों में पानी नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं है, हमारे बाथरूम में पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं? पुलिस आती है, पुलिस हमें धमकी देती है कि हम सारे को उठा के जेल में फेंक देंगे। हमें अपने इंसाफ चाहिए। जबकि इस बारे वापडा काम का कहना है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत का काम जारी है, जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि पुलिस थाना एयरपोर्ट भारी नफरी के हमला मौके पर पहुंच गई। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। वापडा की गफलत हर हद पार कर गई। बिया चन्नू में तूफानी बारिश के बायस बिजली के पोल गिरे, 3 माह गुजर गए मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडिया। मियां चन्नू वापडा हुकाम ने बेहिसी की इंतहा कर दी। तूफानी बारिश से गिरे हुए इन बिजली के पोलों को 3 माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन वापडा सब डिवीजन मियां चन्नू के अफसरान खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। मौसम खराब होने की सूरत में ये बिजली के पोल किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अहलियान इलाका ने वापडा हुकाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है, वापडा वाले 903-4 बार आ चुके हैं, किसी ने साड़ी गल सुनी। ये जे कोई इत्थे हादसा हो गया तो इहदा जिम्मेदार कौन हो सी? ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? जी ਅਸੀਂ बड़ी अर्ज कर रहे हैं कि खंबे डिगे पे ने, इतों इन्हों का कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा। वापडा वाले ने दफ्तर गए ने, उन्होंने भी कोई नहीं सुनी कि लिहाजा मेहरबानी करके
ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਫਾ ਆ ਚੁੱਕੇ हैं ਤੇ कोई बंदा मर गया इतने कोई हादसा हो गया तो वो कौन जिम्मेवार होगा। हाई वोल्टेज ये बिजली की तारें जमीन से 6 फुट के फासले पर हैं, जो कि वापडा हुकाम की नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत है। अहलियान इलाका ने मैप को ठीक से अपील करते हुए कहा है कि इन गिरे हुए बिजली पोलों का नोटिस ले ताकि हम किसी बड़े हादसे से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ जवेद इकबाल चांडियाट, रीजनल ब्यूरो चीफ, सच न्यूज मियां चन्नू। गुज़िश्ता रोज कोट छुट्टा और इसके मज़ाफ़ात पे होने वाली तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस बिजली के पोल, मकानात और मुतादिद दरख्त ज़मीं पोस हो गए। अली रजा हमदानी की रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज तहसील कोटछुटा और उसके मुज़ाफ़ात के इलाके माना हमदानी, नोतक, महमीद, चोटी ज़ेरीन, आलीवाला में तेज और तूफानी हवाओं का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर फलाप हो गया। माना हमदानी में 80 लाख रुपए की खतीर रकम से तैयार करदा लिंक कंक्रीट रोड भी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से तैयार होने वाला रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इसी तरह मुज़ाफ़ात के इलाकों में गलियां बारिश के पानी से भर गई। उधर दूसरी जानब तेज हवाओं ने जहां मकानात की दीवारें और छतें गिरा दी, वहीं बिजली के पोल भी तेज हवा की जद में आकर गिर गए, जबकि तेज हवाओं की वजह से नाला धिंगाना पर मौजूद मुतअद्दिद दरख्त भी गिरकर जमीन बोस हो गए। ताहम तहसील कोटछुट्टा में तेज हवाओं की वजह से गिरने वाले मकानात, दरख्तों और बिजली के पोल से किसी किस्म का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज होने वाली तेज बारिश के बायस जहां बिजली के पोल गिर गए, वहीं मुतअद्दिद दरख्त भी गिरकर जमीन बोस हो गए। महकमा जंगलात को चाहिए कि दरख्तों को बर वक्त अपनी तहवील में ले। अली रजा हमदानी, सच टीवी, कोटछुट्टा। मुजफ्फरगढ़ तालीपुर रोड को दोरोया करने के लिए मुजफ्फरगढ़ के शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने जीटी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से रोड को दोरोया करने का मुतालबा किया। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ ता अलीपुर कातिल रोड पर रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हादसात और उनमें दर्जनों अमवात से तंग हाल खवातीन मर्दों के हमरा सड़कों पर निकल आईं। दर्जनों खवातीन ने मर्दों के हमरा जीटी रोड पर अमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने रोड को डबल करो के नारे लगाए और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक इस कातिल रोड को फिल फौर डबल किया जाए। हम अब मजीद लाशें नहीं उठा सकते और हम हुकूमत पंजाब को ये बताना चाहते हैं कि हम अनकरीब कम व बेश 10,000 बंदों के साथ आएंगे और पंजाब असम्बली के सामने हम धरना भी देंगे। मुजाहिरीन ने कहा कातिल रोड पर होने वाले हादसात से वो कीमती जानें गंवा चुके हैं और रोड से लाशें उठा कर थक चुके हैं। रोड को डबल किया जाए मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक। जो इधर के MNA MPAs हैं उनको चाहिए कि वो जाके अवाम की हक की बात करें और इस कातिल रोड को डबल कराने की कोशिश करें। ये यहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इंसानियत होनी चाहिए और तमाम MNA MPAs को चाहिए कि वो इस जो कातिल रोड को है डबल करें। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुजफ्फरगढ़ ता अलीपुर रोड को डबल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। हरीपुर के दूर अफ्तादा इलाकों में आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अरबों रुपए मालियत के मंसूबे शुरू कर दिए गए। सड़कों की तामीर, पानी और बिजली गैस की स्कीम, स्कूलों के अपग्रेडेशन और तामीर का काम जारी है। नईमुल्लाह खान की रिपोर्ट। वफाकी वजीर उमर अयूब खान और सूबाई वजीर अकबर अयूब खान ने हरीपुर के पसमानदा इलाका स्वाबी मेरा में 9 अरब रुपए की खती रकम के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिसमें रोड, गैस और बिजली के मंसूबे शामिल हैं। ये इलाका पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक पसमानदगी का शिकार है। लोगों ने अपने इलाके में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। मेरे को स्कीमा दी लिस्ट है, ये तकरीबन 9 अरब रुपए दियां बनदियां ने गैस, बिजली और बाकी स्कीमा मिला के 900 करोड़ रुपए दियां। आज बुजुर्गों दोस्तों, जेड़े रोड, जेड़े बिजली फीडर और सुई गैस का इफ्तिताह होया 2.5 अरब रुपया दा, ये सारे तुसी इफ्तिताह इकट्ठे करो ते 8-9 अरब रुपए बनते ने। बुजुर्गों दोस्तों, 8-9 अरब रुपया का मतलब है 800-900 करोड़ रुपया। सारी टीम दिन रात अलीपुर लगी दी है। इलाके के मुंतखब नुमाइंदों को खराज तहसीन पेश किया। लिया में कौम के मेहमानों ने तलबा को मजदूर बना दिया। तहसील चौबारा में सरकारी स्कूल की दीवार की मुरम्मत का काम तलबा से कराया जाने लगा। शदीद गर्मी में मजदूरी करते तलबा की वीडियो वायरल। महकमा तालीम खामोश।
मोटरवे पुलिस ने कलर कहार के मकाम पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली। मुलजिम गाड़ी छोड़कर नामालूम गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस की कलर कार के मकाम पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गाड़ी से करोड़ों रुपए मालियत की मुंशियात बरामद कर ली गई है। मुंशियात में 8 किलोग्राम हेरोइन, 4 किलोग्राम अफ्यून और 1 किलो आइस बरामद की गई है। मुलजिम गाड़ी छोड़कर जो जब मोटरवे पुलिस ने मुलजिम का पीछा किया तो मुलजिम ने अपनी गाड़ी छोड़कर पीछे आने वाली गाड़ी में बैठकर जो मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी नंबर LZT 5780 होंडा कार जो वो कब्जे में लेकर मुलजिम की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। जी इस्लामाबाद में F9 पार्क मास वैक्सीनेशन सेंटर में हालात मामूल पर आ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जो ही राब्ता बहाल होगा मजीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में F9 पार्क मास वैक्सीनेशन सेंटर में हालात मामूल पर आ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन जारी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। कमालिया में ब्रायलर गोश्त की कीमत 330 रुपए से भी तजावुज कर गई। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में महंगाई का तूफान न थम सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत में आए रोज इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ओपन मार्केट में आज का रेट 330 रुपए फी किलो है। आम आदमी के लिए गोश्त खरीदना खासा मुश्किल हो चुका है। इस मौका पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, चिकन की कीमतों में दिन ब दिन मजीद इजाफा हो रहा है, जो आवाम के लिए बहुत शदीद मुश्किलात हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि चिकन की कीमतों को कम किया जाए ताकि आवाम को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। चिकन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे कीमतों को कंट्रोल करे और जो है ना अपना महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि जो है ना गरीब आवाम आसानी के साथ कम से कम चिकन तो खरीद सके, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए खरीदारी का असूल मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इंतजामिया ऐसे नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में बेबस दिखाई दे रही है। चिकन की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से चिकन की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साची न्यूज टीवी, कमालिया। मानावाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मियां शेर जरगर की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी महंगाई का जिन बोतल से बेकाबू हो गया। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। चीनी, आटा, घी और तमाम एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। मानावाला के शहरियों का कहना है कि बजट 2021 भी गरीब आदमी के लिए जानलेवा साबित हुआ। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी परेशान दिखाई देते थे, तो वहीं महंगाई ने मजदूर आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, जिस पर मानावाला के शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, अब तो ये आसमानों से बातें कर रही हैं। घी, दाल, चावल वगैरह पहले तो ये गरीब आदमी की पहुंच में है थे, पर ये अब नहीं रहे। जब का ये बजट पास हुआ है ना, इसका गरीब आदमी कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि खुदारा इन चीजों के रेट कम किए जाएं, जिससे गरीब आदमी का चूल्हा जल सके। दूसरी जानब दुकानदार हजरात का कहना है कि इस बढ़ती हुई महंगाई से हमारे कारोबार बंद होकर रह गए हैं, जिस पर मानावाला के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बढ़ती हुई महंगाई में कमी की जाए, ताकि गरीब आदमी भी एशिया खुर्दनोश को आसानी से खरीद सके। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। टोबा टेक्सिंग के एहसास कफालत सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। इमदादी रकम के उसूल के लिए दूर दराज इलाकों से आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग हुकूमत की जानब से बेसहारा गरीब अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत तहसील म्यूनसिपल कमेटी में सेंटर बनाया गया। सेंटर में अमदाद के हसूल के लिए अलल सुबह शहरियों की कतारें लग जाती हैं। सेंटर में काउंटर कम होने की वजह से ज्यादातर अफराद घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। सेंटर में ना तो साए का बंदोबस्त किया गया है और ना ही पीने का साफ पानी दस्तयाब है। यहाँ आने वाले ज्यादातर अफराद पानी न मिलने का शिकवा करते हैं। पानी कभी रोड से जा रहे, उधरों धक्के मिले, इधर आ रहे हैं, इधरों धक्के मिले, उधर जा रहे हैं। आज सुबह बच्ची मेरी भुखी है, पानी नहीं मिल रहा सानू। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, कोई इधरों बंदे ਧੱਕੇ मारਦੇ, कोई इधर मार दिया जी। उस तो बाद मेरे घर दे प्यासे ऊपर डिग रहे हैं जी पार्किंग दे। हम लोग सुबह 9 बजे के आए हैं, अभी तक कोई बात नहीं हमारी सुन रहे हैं।
बहुत जलील हो रहे हैं, ना कोई इधर पानी का इंतजाम है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सेंटर में काउंटर की तादाद को बढ़ाया जाए और पीने के साफ पानी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। हारूनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। हारूनाबाद तहसील अस्पताल में सहूलियात का फुकदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पीने के साफ पानी की कमी, बाथरूम्स की नागजीर हालत, अदवायात की कमी और डॉक्टरों की खाली नशिस्तें बड़े मसाइल हैं। एमरजेंसी में मुखीर हजरात की तरफ से अतिया की गई अदवायात से ही काम चलाया जा रहा है और एमरजेंसी सहूलियात फुकदान के बायस एमरजेंसी डॉक्टर हजरात भी एमरजेंसी केसेज को ट्रीटमेंट की बजाय बहावलपुर या लाहौर रेफर करने में ही आफियत समझते हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है हुकूमत की तरफ से अदवायात के बजट में कमी से अदवायात की अक्सर किल्लत रहती है। डॉक्टरों की अक्सर नशिस्तें खाली हैं, जिसकी वजह से मौजूद डॉक्टरों के पास बेइंतहा रश होता है, जिससे अक्सर मरीज चेकअप से महरूम रह जाते हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है। एमएस तहसील अस्पताल का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद हम आने वाले मरीजों को बेहतरीन सहूलियात के लिए कोशा रहते हैं। अवामुन नास ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि लाखों की आबादी को सहूलत फराम करने वाले तहसील के वाहिद 24 घंटे एमरजेंसी अस्पताल को सहूलियात फराम की जाए, डॉक्टर और अमले की कमी को भी पूरा किया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। कोटदू के इलाके पीरजोगी मोड़ पर आवारा कुत्तों का राज है। कुत्तों के काटने के मुतादिद वाकयात होने के बावजूद म्युनिसिपल इंतजामिया को होश न आया। शहरी खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटदू के इलाके पीरजगी मोड़ पर आवारा कुत्तों का राज है। बच्चे खौफ के साए में स्कूल जाने पर मजबूर हैं। बच्चों और जानवरों को कुत्तों के काटने के मुतद्दिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। ये हमारे पीरजगी मोड़ चाके नंबर 18 कब्रिस्तान और आबाई इलाकों में बहुत ज्यादा कुत्तों की भरमार है। इनकी वजह से वहाँ बहुत परेशान है। इन कुत्तों की वजह से हमारे इलाके में 2 जानवर, एक इंसान की डेथ हो गई है। उनकी वैक्सीन हमें इस इलाके में नहीं मिली। अगर कुत्ते किसी को काट लेते हैं, वो वैक्सीन हमें डेरा लिया और मुल्तान डेरा गाजी खान जाकर मिलती है। मुतद्दिद बार म्युनिसिपल इंतजामिया को शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरी खौफ के साए में रहने पर मजबूर हैं। की वजह से यहाँ से बहुत से मसाइल हैं, खास और जो बच्चे हैं छोटे स्कूल जाते हुए अक्सर उनको काटने के वाकयात हैं। जो मुसाफिर यहाँ पर जो आउट ऑफ सिटी से यहाँ आते हैं उनको जख्मी करने के वाकयात हैं। आवारा कुत्ते के जैसे मसाइल यहाँ इतने हैं कि आप सुबह और शाम कब्रिस्तान में जाएं तो आवारा कुत्तों को जैसे कब्रिस्तान में कब्रों को बेरुमती की जाती है। कुत्ते काटने की वैक्सीन भी अस्पताल में मौजूद नहीं होती, इसलिए मुतासरा शख्स को लिया डेरा गाजी खां या मुल्तान लेकर जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए डीसीओ मुजफ्फरगढ़ से अपील की है कि इलाके में कुत्ता मार मुहिम चलवाई जाए ताकि शहरी बिला खौफ जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज, कोटदू। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया और PHA की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी मुहिम जारी है। अस्पतालों, बुनियादी सेहत मराकज और स्कूल्स में भी शजरकारी की जा रही है। अहमद काशिफ की रिपोर्ट। डिवीजनल इंतजामिया मुल्तान और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। कम्प्रीहेंसिव स्कूल रोड पर भी पलकन के 100 तैयार दरख्त लगाए गए। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि मुल्तान का दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक कम करना उनकी ख्वाहिश है, जिसके लिए वो तैयार दरख्तों की शजरकारी करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्तान डिवीजन में बड़े पैमाने पर शजरकारी जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोकल इजनास के बड़े तैयार दरख्त लगवाकर इंसानी सेहत के लिए मुज़रे इजनास के दरख्तों को बतदरीज खत्म किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, बुनियादी मराकज़ सेहत में 1.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा चुके हैं। इस सिलसिले में PHA को लोकल गवर्नमेंट की तरफ से 23 लाख से ज़ायद की रकम भी अदा कर दी गई है। इस मौके पर चेयरमैन PHA एजाज अहमद जंजुआ का कहना था कि पिछली हुकूमतों की जानिब से शजरकारी पर तवज्जो नहीं दी गई। वतन अजीज में ग्रीन कवर में इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि शहरी अपने घर और दफ्तर में शजरकारी करके हुकूमत का साथ दें, क्योंकि माहौलियाती तगय्युर हम सबका मसला है। हर बशर 2 शजर सिर्फ एक मुहिम नहीं मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको बढ़ चढ़ कर इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान की जानिब से सुखैल अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सलमान खान की रिपोर्ट। टीबी सहूलियात से महरूम शुमाली वजीरिस्तान मिरली के हसोहेल अस्पताल में यूथ ऑफ वजीरिस्तान की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का मकसद महकमा सेहत का इलाके में हेल्थ सहूलियात की तवज्जो दिलाना है।
फ्री मेडिकल कैंप में शहरियों को फ्री चेकअप कराने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। ये फ्री मेडिकल कैंप यूथ ऑफ वजीरिस्तान के ज़ेर निगरानी मुनक़द की गई है। इसका मकसद ये है कि गरीब आदमी को उसके घर के करीब उसके दहलीज पे उसके ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन मिल जाए। और हमने इधर बेहतरीन डॉक्टर को जो है ना इधर अपने साथ लाया है। एक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है हमारे साथ रोजाना की बुनियाद पे और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हुआ करता है। यहाँ पे सुहेल सिविल अस्पताल में यूथ ऑफ वजीरिस्तान के ज़ेर निगरानी हमने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। आज दूसरा दिन था। रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 250-300 बीमारों का चेकअप होता है। यहाँ पे हमारा एक मसला ये भी है कि अस्पताल पे खर्चा हुआ है, बिल्डिंग बनी है, लेकिन यहाँ पे न कोई स्टाफ है, न कोई मतलब हेल्थ की फैसिलिटी है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो अस्पताल है इसको जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए और यहाँ पे जो आवाम है उसको हेल्थ की फैसिलिटी फराहम किया जाए। इस मौके पर अहले इलाके ने महकमा सेहत से शुमाली वजीरिस्तान के अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच टीवी, शुमाली वजीरिस्तान। आरिफ वाला के बागों में लगे आम पक कर तैयार हो चुके हैं। बच्चों बड़ों सबके पसंदीदा आम किन मराहल से गुजरकर मार्केट तक पहुंचते हैं, जानते हैं जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट में। मौसम गर्मा का लज़्ज़त और कुदरती मिठास से भरपूर फल आम, जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, पककर तैयार हो चुका है। आम को दरख्तों से उतारकर मसाला लगाकर लकड़ी के डिब्बों में रखा जाता है। 3 से 4 रोज के बाद आम जब मुकम्मल पककर तैयार हो जाता है तो उसे फरोख्त के लिए मार्केट भेज दिया जाता है। साढ़े को 4 किस्म का आम है, रतौर, चौंसा, दुसहरी और लंगड़ा। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 4 दिन ਇੱਥੇ ਰੱਖਨੇ ਆ और 5वें दिन ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ मंडी फरोख्त कर देंगे। मार्केट में आम महंगा होने की वजह से शहरी सस्ते आम खरीदने के लिए बागात का रुख करते हैं। यहाँ जो आम है एक तो फ्रेश मिल जाता है, ताज़ा मिल जाता है। दूसरा इसकी खास बात ये है कि बाजार की निस्बत इधर रेट की में जो है वो वाजिया बहुत कमी है। आम का फल जायके में बेमिसाल होने के साथ साथ तिब्बी लिहाज से भी मुफीद है, इसीलिए तो हर उम्र के अफराद इसे खाना पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। गर्मी के मौसम में सनग्लासेस का इस्तेमाल फैशन भी है और जरूरत भी। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए गाजी खान के शहरियों ने सनग्लासेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मोहम्मद अली मीरानी के वेलकम बैक। आपको बताएं कि गर्मी के मौसम में सनग्लासेस का इस्तेमाल फैशन भी है और जरूरत भी। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए गाजी खान के शहरियों ने सनग्लासेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत के बायस सनग्लासेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए गाजी खान के शहरियों ने सनग्लासेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एबटबाद के सरसब्ज शादाब पहाड़ों के दामन में बहती नदी हरनौत स्याहों को अपने शहर में जकड़ लेती है। स्याह ठंडे पानी में खेल कूद कर गर्मी को भगाने में मशगूल नजर आते हैं। हरनौ के ठंडे पानी और दिलफरेब मौसम से स्याह खूब लुत्फानंदोज होने लगे हैं। बच्चे, बड़े, मर्द और खवातीन पानी में रखी चरपाइयों पर बैठकर मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। एबटबाद के तफरी मकाम हरनौ पर मर्द व खवातीन के साथ साथ बच्चे भी बड़ी तादाद में घोड़सवारी और ऊंट की सवारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और ठंडे पानी में नहाकर दिल को बहला रहे हैं। हर तरफ स्याहों के चेहरे खिले खिले नजर आते हैं, जैसा कि ठंडे पानी और परफजा मौसम ने इनकी सारी थकावट और परेशानियों को दूर भगा दिया हो। हरनौ में मौजूद स्याहों का कहना है कि हरनौ के मौसम की क्या ही बात है, गर्मी की शिद्दत का एहसास ही खत्म हो जाता है। हरनौ एबटबाद में स्याहों के लिए जन्नत से कम नहीं। मुल्क भर के स्याह हरनौ के खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं और गर्मी से छुटकारा हासिल करते हैं। कैमरा टीम के साथ सईद खावर अली शाह, सच टीवी, हजारा डिवीजन। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया से गुजरे 5 बरस बीत गए। मुनफरिद आवाज से कव्वाली को नई जिद्दत और जहद बख्शी यादें आज भी बंदाहों के दिलों में ताजा आवाज गूंज रही है। हुकूमती पाबंदियों और वैक्सीनेशन के असरात सामने आने लगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होते होते 1.7% तक आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 663 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मोहलक वायरस से सिर्फ 27 अमवात सामने आए। मुल्क में अमवात की तादाद 22,034 तक पहुंच चुकी है।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 663 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,49,838 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,45,141، سندھ میں 3,32,677، خیبر پختونخوا میں 1,37,147، بلوچستان میں 26,673، گلگت بلتستان میں 5,827، اسلام آباد میں 82,394، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,979 کیس رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 27 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,034 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,659، سندھ میں 5,344، خیبر پختونخوا میں 4,274، اسلام آباد میں 775، بلوچستان میں 301، گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 573 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,81,87,441 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,017 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,94,352 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,179 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سی ٹی ڈی نے رحیم یار خان میں کارروائی کے دوران دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دہشت گردوں میں غلام رحمان اور شاہد شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں زین نقوی سے۔ جی زین۔ ہاں جی بالکل، سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے رحیم یار خان میں، اور اس آپریشن کے دوران جو ہے وہ 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق جو دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک کا نام غلام رحمان بتایا جا رہا ہے، جو کہ چورنگی ضلع کراچی کا رہائشی ہے، جبکہ دوسرا دہشت گرد جس کا نام شاہد بتایا جا رہا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ بادامی باغ لاہور سے ہے۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد، سیفٹی فیوز اور ڈیٹونیٹرز بھی برآمد کر لیے گئے، جبکہ اس کے علاوہ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی ملتان میں مقدمہ بھی درج کر دیا گیا اور مزید معلومات اور مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پہ دہشت گردوں کو منتقل کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ زین نقوی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو نانگا پروت راما جھیل نے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہم امریکہ اور یورپ جا کر اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں، پاکستان میں بہت خوبصورتی ہے۔ ناگا پروت کے پاس راما جھیل کی آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے میرے راما لیک ہے، یہاں پر ہم کھڑے ہیں۔ یہ بڑا ایڈونچرس ٹور ایک ہمارا رہا ہے، اور یہاں پر آنے کے لیے ہمیں پہلے جی پی پر ٹریک، پھر اس کے بعد ہمیں گھوڑوں پہ ہمیں آنا پڑا۔ ٹیمپریچر یہاں پہ فریزنگ ہے، مائنس میں ہوگا، یہاں پہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا تو بتا نہیں سکتا کیا ہے، لیکن میرے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، اٹس اے ٹوٹل ویسٹ آف منی۔ پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اور اتنا زبردست ٹوریزم اسپاٹ ہے کہ یہاں پہ آدمی سوئٹزرلینڈ بھول گئے۔ اپنے ملک میں زبردست ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم نے زندگی ضائع کی جو یہاں پر نہیں آئے۔ میری سب کو ایڈوائز ہے، تمام فیملی کو، تمام پاکستانیوں کو، انٹرنیشنل ورلڈ میں ایڈوائز ہے کہ اگر آپ نے خوبصورتی دیکھنی ہے اور اللہ کی شان دیکھنی ہے۔ اور اب آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں ایوب پاک میں، جو اپنی مثال آپ ہے۔